सो स्टार्टिंग विथ चैप्टर 2 ऑफ स्टैंडर्ड 7 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मैंने आपको ग्रुप में PDF भेजा था, आपको बोला था लेसन को रीड करने के लिए। आई होप यू ऑल हैव रीड द लेसन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ द एक्सप्लेनेशन। न्यूट्रिशन इन एनिमल, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने क्या देखा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में देखा था। अभी ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में, राइट? हम लोग ने देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि जो न्यूट्रिशन रहता है वो असेंशियल रहता है। क्यों? फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, राइट? सो अभी देखते हैं न्यूट्रिशन, व्हाई द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज असेंशियल, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बोला था प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? Obviously they prepare their own food by themselves, right? By the process of photosynthesis. But animals cannot. Animals photosynthesis का process carry out नहीं कर सकते, ठीक है? Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals, ठीक है? ये जो animals हैं they get their food from plants either directly or by eating plants indirectly by eating animals that eat plants. वो एटलीस्ट क्या करेंगे? they will be eating plants directly or they will eat the animals which are eating the plants, ठीक है? So some animals eat both plant and animal. Recall that all organisms include human require food for growth. ये हम लोग ने पढ़ा था कि human beings grow मतलब for their nourishment they required food, right? So growth, repair and functioning of the body. क्यों चाहिए food? For the growth of the body, for the functioning of the body, right? So animal nutrition includes nutrient required. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. So you have studied in class 6 that फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। हम लोग ने फूड के बारे में द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, चैप्टर 1 में देखा था कि जो फूड रहता है उसके क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं। हम लोग ने विटामिन के बारे में पढ़ा था। सो क्या क्या था? ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। क्या क्या पढ़ा था? विटामिन के बारे में देखा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, राइट? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब हम लोग ने चैप्टर 1 में लास्ट ईयर देखा था। So the component of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substance. The breakdown of complex components of food into simpler substance is called digestion. अभी यहाँ पे कौन सा टर्म इंक्लूड हुआ? डाइजेशन. So what do you mean by digestion? The breakdown of complex component, right? The breakdown of complex component, or we can say the breakdown of complex substance into the simpler substance is called digestion. So you are supposed to write this definition. मैं अगर जब आपको पढ़ा रही हूँ कोई लेसन तो आपको एक नोटबुक बाजू में लेके रखना है। जो भी डेफिनेशंस आएगा वीडियो वहाँ पे पॉज करके आपको वो डेफिनेशंस अपने बुक में लिखना है, ठीक है? सो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेसन का नाम लिखना है, ऊपर डेट डालना है, डेफिनेशन करके लिखना है और 1 by 1 यू हैव टू नोट डाउन दिस पॉइंट ओवर हियर, ठीक है? सो डाइजेशन मतलब क्या? द ब्रेकडाउन ऑफ simple complex substance into the more simpler one, that means by which the body can utilize it properly. So this process is known as digestion, right? Now starting with 2.1, that is different ways of taking food. So what are the different ways of taking food? The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. Snake like the phantom swallow the animal they prey upon.
Some aquatic animal filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. यहाँ पे क्या दिखा बोला है, डिफरेंट वेज दैट एनिमल्स इंटेक देयर फूड, कैसे एनिमल्स अब खुद को फूड अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है, मोड दिया है यहाँ पे। सो जो बीज और जो ह्यूमिंग बर्ड्स रहते हैं वो क्या करेंगे, दे विल सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर ऑफ अ प्लांट। इन्फेंट्स मतलब छोटे बच्चे जो रहते हैं ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स, और बहुत सारे एनिमल जो दे आर फीडिंग मतलब जो दूध के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो क्या करेंगे, दे विल फीड ऑन मदर्स मिल्क, ठीक है। और जो स्नेक्स रहते हैं लाइक फेंटॉन, दे वो क्या करेंगे, वो स्वैलो करेंगे, किसको, दूसरे जो प्रे के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं, मतलब वो जो दूसरे एनिमल्स को खाते वो उसको निगलेंगे, ठीक है। सो सम एक्वेटिक एनिमल, जो सम एक्वेटिक एनिमल्स है वो क्या करेंगे, दे फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स, वो जो पानी के ऊपर वो क्या करेंगे, फूड पार्टिकल जो तैरते रहेंगे उसको वो स्वेलो करें, ठीक है, दे फीड अपॉन देम। So here's an activity 2.1 for you. So you are supposed to read this activity, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिखाई दिया है, वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग, ठीक है, एनिमल्स के नेम दिया है, वो क्या काइंड ऑफ फूड खाते हैं, और मोड्स ऑफ फीडिंग मतलब वो कैसे खाते हैं। सो दिस इज़ योर today's homework. You are supposed to do this activity 2.1 in your book. If you, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हो, नेट है, गूगल है आपके पास, आप उसके ऊपर भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। नाउ फर्दर स्टार्टिंग विथ डाइजेशन इन ह्यूमंस 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस। हम लोग ने मोड्स के बारे में देखा, अभी देखते हैं ये जो इंटेक करने के बाद जो डाइजेशन प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो कैसे कैरी आउट होता है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद डाइजेशन इन ह्यूमन, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम लोग खाना कहाँ से खाते हैं, ऑब्वियसली थ्रू द माउथ, ठीक है। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। हम लोग बस खाना खाते हैं, बस हो गया, पर कभी सोचा है कि जो खाना हम लोग खाते हैं उसका क्या होता है बॉडी के अंदर। चलो देखते हैं। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है वो बकल कैविटी है और दिस इज द एनस ओवर हियर, राइट। तो फूड का जो इजेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और जो डाइजेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। ये जो कैनल है वो अभी उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कैसे कैसे करेंगे चलो देखते हैं। सो फर्स्ट इज द बकल कैविटी, देन फूड पाइप और इसोफिगस, देन स्टमक, small intestine, large intestine, ending in the rectum and the anus. It is not a very long path. These parts together form the alimentary canal which we say as digestive tract. ठीक है, तो कौन से वेरियस कंपार्टमेंट में वो डिवाइड हुआ है। पहले तो देखो बकल कैविटी, ठीक है, आप डायग्राम में देखो, आई विल रीड फॉर यू। बकल कैविटी, एसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ठीक है। सो दीज कंपार्टमेंट फॉर्म्स द होल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। चलो आगे। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। The inner walls of the stomach and the intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secretes digestive juice. ये सब जो compartments है वो क्या करेंगे, they are secreting the digestive juice. अभी ये जो डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रेट किया है उन्होंने, उसका यूज़ क्या है। सो द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। ये क्या करेंगे, इट हेल्प्स टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपल वन, मतलब क्या होगा, वो डाइजेस्ट करने में ईजी होगा, ठीक है। सो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द associated glands together constitute the digestive system.
Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive system. अभी हम लोग ने कंपार्टमेंट्स के बारे में तो पढ़ा, अभी हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जाके ये जो फूड है उसका क्या होता है. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद द माउथ एंड द बकल कैविटी. ठीक है. तो देखते हैं बकल कैविटी में क्या होता है. फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ. हम लोग खाना कहाँ पे खाते हैं, मुंह में डालते हैं. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इजेक्शन. मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इजेक्शन. ठीक है. सो we chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. हमारे जो टीथ है, ठीक है, वो क्या करेंगे, फूड को चीव करने के लिए हेल्प करेंगे, मिक्सिंग विद द सैलिवरी ग्लैंड्स ओवर हियर. तो भी ये जो टीथ है वो सब टीथ्स का फंक्शंस भी अलग अलग है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टीथ के नाम्स देखना है. ठीक है. सो यहाँ पे फिगर 2.3 में देखो, अरेंजमेंट ऑफ टीथ आर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. ठीक है. यहाँ पे अरेंजमेंट्स दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ दिया है. ठीक है. सो पहले तो हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. दूध के दांत और हम लोग बोलते हैं ना परमानेंट टीथ, उसमें डिफरेंस क्या है. डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे ऑफ ऑल एट द एज बिटवीन 6 to 8. These are termed milk teeth. The second set that replace them are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease. मिल्क टीथ है, हम लोग छोटे रहते हैं तब वो गिरते हैं, फिर उस मिल्क टीथ गिरने के बाद जो टीथ आते हैं उसे हम लोग बोलेंगे परमानेंट टीथ. ये ऑल ओवर थ्रू आउट द एज रहता है. हाँ, ओल्ड एज में कोई गिर सकता है. ठीक है. ड्यू टू लैक ऑफ द एज. Right. So see figure 2.3. These are the arrangement of the teeth. Premolar, canine and incisor. These are the arrangement of teeth. Which one for pursing and tearing? Also find out that one that are used for chewing and grinding. So आपको अभी क्या करना है, एक्टिविटी 2.2 यू आर सपोज टू राइट दिस एक्टिविटी अगेन इन योर बुक. ये एक्टिविटी जो है वो आपके लिए है. आपको क्या करना है, मैं आपको रफली समझा देती हूँ. आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम दिया है आपको देखना है. जो इंसिसर्स है उसका यूज़ क्या है. ठीक है. कैनन है उसका यूज़ क्या है. हाँ. और जो प्री मोलर है उसका यूज़ क्या है, आपको उसके यूजेस उसमें लिखने हैं. ठीक है. सो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है वो ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 में. राइट. फर्दर, our mouth has a salivary glands which secrete saliva. Do you know the action of saliva on food? Let us find out. आपका अभी हमारे माउथ में सलाइवा है, ये तो आप सबको पता है. तो अभी उसका क्या रोल रहेगा इन द डाइजेशन. राइट. सो लेट्स स्टडी. सो स्टार्टिंग विथ 2.3 मैं आपको ये एक्टिविटी एक्सप्लेन करती हूँ. टेक 2 टेस्ट ट्यूब. क्या करना है आपको, ऐसे जो फिगर में दिखाया है वैसे 2 टेस्ट ट्यूब लेना है. Label them A and B. In the test tube A, put 1 teaspoonful of boiled rice. क्या करना है, boiled rice 1 टीस्पून उसमें डालना है. In the test tube B, keep 1 teaspoon of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. एक में ऐसे ही बॉइल्ड राइस डालना है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, वो बॉइल्ड राइस को थोड़ा चबा के फिर वो टेस्ट ट्यूब में डालना है. Add 3-4 ml of water in both the test tube. Now pour 2 to 3 drops of iodine solution. अभी क्या करना है आपको, 2 to 3 drops of iodine solution उसमें डालना है. ठीक है. तो अभी आगे and observe. Why is there a change in the color in the test tube? Discuss the result with your classmate and your teacher. So saliva breaks down the starch into sugar.
क्या होगा, थोड़ा सा कलर चेंज दिखाई देगा। इस मतलब क्या है, जो सलाइवा वाला जो चीव करके हम लोग ने राइस डाला है उसमें थोड़ा कलर चेंज दिखाई देगा। सो वी कैन से दैट द सलाइवा ब्रेक डाउन्स द स्टार्च इनटू शुगर। द टंग इज अ फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. It is free at the front and can be moved in all direction. Do you know the function of the tongue? We use our tongue for talking. Beside it, mixing saliva with the food during chewing and help in swallowing food. It also tastes food with our tongue. We also taste food with our tongue. It has taste buds that detect different tastes of food. We can find out. So, जो टंग है उसका फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है. टंग हेल्प्स अस इन मिक्सिंग द सलाइवा इनटू फूड, इट हेल्प्स अस फॉर टॉकिंग, ठीक है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ टंग. अभी आपको पता है जो टंग है, आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 5th में, हाँ, टेस्ट्स के बारे में, ठीक है. तो कौन से टेस्ट होते हैं, यू हैव टू लिस्ट इट डाउन. और क्या करना है, जो टंग है वो उसको कैसे आइडेंटिफाई करता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, राइट. सो फर्दर लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी 2.4. Prepare a separate sample each of sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crushed neem leaf or bitter gourd. Blindfold one of your classmates and ask him to take out the tongue and keep it in a straight and flat position. Use a clean toothpick to put the above samples one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6. Use a new toothpick for each sample. Ask the classmate which areas of the tongue could detect the sweet, salt, sour and bitter substances. Now write down your observation and label figure 2.6. Repeat this activity with your other classmates. आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूशंस दिया है, शुगर सॉल्यूशन मतलब शक्कर का पानी, कॉमन सॉल्ट मतलब उसमें क्या करना है, पानी लेना है और नमक डालना है, लेमन जूस तो आपको पता है, और बीटर गार्ड जूस मतलब बीटर गार्ड और क्रश नीम मतलब नीम के पत्ते और करेले का जूस. ये सॉल्यूशंस बनाना है, डिफरेंट क्लासमेट्स के ऊपर ट्राई करना है मतलब क्या, उसको मतलब उसके टंग के ऊपर वो सैम्पल्स रखना है और उनको पूछना है कि विच वन कैन आइडेंटिफाई दी विच टेस्ट ईजीली. सो रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट्स. तो ये जो रीजन्स ऑफ टंग ऑफ डिफरेंट टेस्ट यहाँ पे दिखाया दिया है डायग्राम में 2.6 में, ठीक है. तो कौन सा जो पार्ट है टंग का रीजन है वो कौन सा फूड आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, ये लिखना है, राइट. सो आई विल बी सेंडिंग दिस डायग्राम इनटू ग्रुप. हाँ, सो फर्दर स्टार्टिंग विद द फूड 5 एंड और इसोफेगस. फूड 5 को दूसरा नाम क्या है, इसोफेगस. The swallowed food passed into the food pipe or esophagus. Look at figure 2.2. The food pipe remains along the neck and the chest. Food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. Actually, these movements take place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. At the time, the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instance when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. जो फूड पाइप है उसमें क्या होता है, फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, ठीक है. तो ये क्या करेगा, इट हेल्प अस टू push down the food. Next, stomach. The stomach is a thick walled bag. Its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal. It received food from the food pipe at one end and opened it into the small intestine at the other end.
वो स्टमक क्या करेगा, इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप जो फूड नीचे पुश करेगा वो किसके पास जाएगा, अभी स्टमक के पास, ठीक है। सो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। ये जो इनर लाइन है स्टमक का वो क्या क्या सीक्रेट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक जूसेस, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूस, hydrochloric acid, sorry. So the mucus protect the lining of the stomach. The acid kills many bacteria that enters along with food and make the medium in the stomach acidic and helps the digestive juice to act. The digestive juice break down the protein into simpler substances. ये जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, इट हेल्प्स टू किल आउट द बैक्टीरिया विच आर एंटरिंग विद द फूड, ठीक है। और देन द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो फूड खाएंगे हम लोग वो वो फूड खाएंगे जो डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट है हमारे स्टमक में वो क्या करेगा, इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड, ठीक है, into proteins and into simpler substances, sorry, break down the proteins into simpler substances। हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन्स है, अभी वो प्रोटीन्स बॉडी को ऑब्जर्व होना चाहिए, इसलिए अभी वो डाइजेस्टिव जूस उसको हेल्प करेगा टू ब्रेक डाउन होके फिर वो बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। अभी स्टमक के बाद फूड कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज। इसको सिक्रेशंस कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम द लीवर एंड दी पैनक्रियाज। बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूसेस। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen of the right side. It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called the gallbladder. The bile plays an important role in the digestion of fat. The pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. The pancreatic juice act on carbohydrates, fats, and proteins and change them into simpler forms. The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juices complete the digestion of all components of the body. The carbohydrates break down into simple sugar and the glucose, fats into fatty acid and glycerol, and proteins into amino acids. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, राइट। So the liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen of the right side. It is largest gland in the body. It secretes bile juice. Liver क्या secrete करेगा? It secretes bile juice that is stored in the sac called gallbladder. ये जो bile juice है वो कहाँ पे store है? gallbladder में। ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, आप साइड बाय साइड टेक्स्ट बुक खोल के वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला डायग्राम है उसको देख के आप समझ सकते हो। अभी यहाँ पे मैं आपको आई एम नॉट एबल टू वो डायग्राम यहाँ पे मैं जल्दी से नहीं ला सकती, अभी स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप वो टेक्स्ट बुक खोल के उसको देख सकते हो। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ये बाइल क्या करेगा, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। So the pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. The pancreatic juice act on carbohydrates. Pancreas में pancreatic juice रहेगा, वो क्या करेगा, it acts on carbohydrates, fats and proteins and change them into simpler one. The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. The carbohydrates get broken into simpler sugar and glucose. Carbohydrates क्या होगा, it get broken into simple sugar and glucose, and fats into fatty acid and glycerol, and proteins into amino acids. उसका एसिड्स में कन्वर्जन होगा और फिर वो बॉडी इजीली उसको एब्जॉर्ब करेगा। नाउ स्टार्टिंग विथ एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हम लोग ने लार्ज इंटेस्टाइन देखा, अभी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन देखा, और फिर क्या करेंगे हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। सो द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द
blood vessel in the wall of the intestine. This process is called absorption, right? So the inner wall of the inner small intestine have thousands of finger like outgrowth. These are called villi. Can you guess what the role of villi could be in the intestine? The villi क्या करेगा villi? The villi increase the surface of area for absorption of the digested food. Each villus has a network of thin and small food vessel close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food materials. The absorbed substances are transported via the blood vessel to different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins required for the body. This is called assimilation. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed enters into large intestine. अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये फूड कहाँ पे जाएगा? अभी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन कैसा है? बड़ा है एज कम्पेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. इट्स फंक्शन इज टू ऑब्जॉर्ब वाटर. सॉरी, मैंने गलत बोला यहाँ पे. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. वाइडर है, ठीक है, पर स्मॉल एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज शॉर्टर, ठीक है. सो इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. ये क्या करेगा? वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेगा. The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called ejection. जब फूड एंटर होता है तो वो प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंजेक्शन. सॉरी, वो प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंजेक्शन, और जो वो एक्सक्रेट होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे इजेक्शन, ठीक है. सो नाउ स्टार्टिंग विथ 2.3, ठीक है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. Have you observed cows, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen. जो काउज और बफेलो है आप देख सकते हो, वो है ना खाली खाली बैठ के भी अपना मुंह चबाते रहेंगे, ठीक है. सो इट्स एक्चुअली दे क्विकली सैलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमेन. वो क्या करते हैं? वो खाना खाते हैं पर वो उसको स्टोर करके रखते हैं कौन से पार्ट में? रूमीन में, ठीक है. सो हियर द फूड गेट्स पार्टली डाइजेस्टेड एंड इट इज कॉल्ड कर्ड. पार्टली डाइजेस्टेड होता है वहाँ पे फूड और उससे बोलेंगे हम लोग कर्ड. बट लेटर द कर्ड टर्न्स टू द माउथ in small lumps and the animal chews it. This process is called rumination and these animals are called ruminants, ठीक है. तो काउस बफेलो जो च्यू कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं रूमेन में और फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर दैट इज पार्टली डाइजेस्टेड इज नोन एज कर्ड एंड देन लेटर कर्ड टर्न्स टू माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यू. फिर वो कर्ड क्या होगा? इट रिटर्न्स टू द माउथ और फिर उसको वो बैठ के चबाते रहेंगे, ठीक है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन और जो ये प्रोसेस करते हैं उसे हम लोग बोलेंगे र्यूमिनेंट्स, ठीक है. सो द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ruminants like cattle, deer, etc. Bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. Many animals including humans cannot digest cellulose. पहले तो आप सबसे पहले फिगर 2.9 देखो. दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ruminants, ठीक है. अभी ये यहाँ पे क्या है? ये र्यूमिन है, वो उसको यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे ग्रास को, फिर थोड़ी देर बैठने के बाद उसको वो वापस वो मुंह में लाके उसको चबाएंगे, ठीक है. Now, animals like horse, rabbit, etc. have a large sac-like structure called caecum.
Between the esophagus and the small intestine, the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria and which are not present in the human. So far you have learnt about animal which possess a digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake. कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसके पास माउथ भी नहीं है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे फूड को ऑब्जर्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं अभी। सो स्टार्टिंग विथ 2.4 दैट इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। कहाँ पे मिलेगा ये ऑर्गेनिज्म? पॉन्ड वाटर में मिलेगा। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल इन इट्स साइटोप्लाज्म। अमीबा constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia और फॉल्स फीट फ्रॉम मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। अभी ये जो अमीबा है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, अभी इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, मुंह भी नहीं है, तो ये कैसे फीड होगा? ठीक है। सो अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन और राउंड डेंस न्यूक्लियस। उसको क्या क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, आप देख सकते हो, सेल मेम्ब्रेन मतलब दिस आउटर पार्ट, ठीक है, and many small bubble-like vacuoles in the cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like ejection called pseudopodia or false feet for movement and capture of the food. Amoeba feeds on some microscopic organism when it sends food. It pushes out pseudopodia around the food particles and engulfs it. The food becomes trapped in food vacuole. Digestive juices are secreted into the food vacuole. Digestive juices कहाँ पे secrete होंगे? Food vacuole में. They act on the food and break it down into simpler substances. ये digestive juice क्या करेगा? वो food को simple substances में break down करने में help करेगा. Gradually the digested food is absorbed. The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. The undigested residue of the food is expelled out by the vacuole. The basic process of digestion of food and release of energy is same in all animal. In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. So this was all about the nutrition in animals और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग उसके ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन इनटू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 2 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक है। अगर आपको अमीबा के बारे में समझ में नहीं आया है तो आप सिंपली क्या करो, यूट्यूब पे जाओ और वहाँ पे टाइप करो फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। सिंपल वीडियो के साथ आपको वो प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और आई विल बी पोस्टिंग दिस वीडियो इनटू दी ग्रुप, उसको देख के आप समझ जाओगे। एक्सप्लेनेशन से बेटर क्या होगा, उसको ईजिली पिक्चराइज करके पढ़ना, ठीक है। Right, so I'll be sending you the question answers, workbook question answers PDF in the group later. You are supposed to now go through this lesson, ठीक है, उसको read करना है, right? So that's it for today and we have completed our chapter number 2 that is nutrition in animals standard 7, right? So thank you.